Welcome, ladies and gentlemen. We now starting, and it seems that it's going to rain at my place, and people up in the hills have certain problems with the internet. So, but don't worry, this will continue. Bhadrata is a great storyteller. He's going to tell you the story of Kilmora, how Kilmora has been empowered by the communities themselves, and how Kilmora is a KGU, Kumaon Gramin Udyog, is working relentlessly to to provide opportunities for all of us. I would say so. When you say provide opportunities for themselves, yes, of course, uh, that's one thing. But the point is the kind of stuff which we're churning out for all of us is hugely commendable. You know, right from the textiles to the shawls to their farm produce. It's amazing, absolutely amazing. But there's a lot that's going in there behind the scenes. You know, there's a huge machinery of people that is churning this out for all of us, which you've seen beautifully. Jars or the stoles or the shawls. There's a lot of effort of and thought process going into it behind the scenes. You know, the looms, the weavers, the collection, the think tank, the meetings, and it's strewn about. There are villages, there are communities that are working all the time doing this. But the good thing about this is that they're celebrating. They are loving it. It's not a machine. It's not an industry. It's celebration of life, and that is the most beautiful part, and which you will see during the course of this webinar, my friends. And so Bahadurda is back, and light aa gayi wapas. Oh, excellent. Okay. So I've gotten my face brightened up. Um, I will quickly. So friends, I'll just myself. Yeah, I am Mohit Agarwal. I'm an experiential ecotourism specialist, and while my tourism business is at a standstill, we are still continuing to pursue our conservation goals. And with Kilmora, we've been working together to look at various dimensions of getting them more eyeballs and to scale up their business. And I've just been in love with whatever they're doing, so which is why I'm connected with them. Now I'm not going to take too much time of yours, and over to the ladies and gentlemen here, Anamika, Bhadarda, and Anurag, the workhorses of Kilmora. Over to you, friends. Thank you. Thank you so much, Mohit. Thank you again for making us do this. We did need to do this, but thank you for making it happen. Thank you for giving us that push and the support that Asian Adventures provides to us in making this whole thing happen. So, a big thanks to all of you. Uh, the Bahadur will be primarily leading this presentation. Good evening, everyone. I'm Anamika. I head the Agri division at Kilmora. Bahadur heads logistics, distribution, and a lot more. He will tell you in person all the varying roles that he fulfills. हमारा ज़्यादातर presentation हिंदी में होगा और मैं बीच बीच में हर दूसरे तीसरे स्लाइड पे मैं बीच बीच में रुक के थोड़ा बहुत इसको समराइज कर दूंगी अंग्रेजी में. Most of our presentation will be primarily in Hindi, but I will encapsulate it every third or second or third slide or fourth slide in English. The flow gets broken if I try and do it every slide, and we promise to have this presentation out with subtitles, especially for all the attendees who might miss out on some nuances because it's going to be primarily in Hindi. So, the joys of working in the Himalayas are many. Anurag Chatrat, who's our managing director,
and me, we have left lives in the city very consciously to shift to the hills and be associated with a social enterprise. काफी फायदे हैं एक ऐसी संस्था से जुड़ने का, जो काम की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो तो है ही, और यहाँ के समुदाय के लोगों से बातचीत होती है, जान पहचान बढ़ती है। और जो फायदे हैं वो आज खासकर जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो उस दिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए किल्मोड़ा में एवरी डे इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बिकॉज we all our products are handmade, handcrafted, small batch. So when we speak about World Environment Day, or when we speak about the environment, we are speaking necessarily about sustainability. I have taken the liberty of taking something that Fashion Revolution and Fashion Revolution India have been sharing. They have been doing a lot to educate people about fashion, uh, which is also good for the planet. So they spoke about cultural sustainability, how handmade supports cultural sustainability, जहाँ पे हम यहाँ पे जैसे बिनाई का काम करते हैं, the weaving that we do is a skill that is being passed on to the next team, to the next generation. It is encouraging them to stay here. शहर में जाने का लोभ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आमदनी के जरिए है, और एक नया हुनर सीख रहे हैं, नया स्किल सीख रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन कर सकते हैं। वो नॉलेज ट्रांसफर सस्टेनेबल होता है। हम जब हाथ का काम करते हैं, उसमें आप जैसे देख रहे हैं, आनंदी के जो मुंह पे जो हंसी है, वो इसीलिए है क्योंकि उनको गर्व है उन्होंने जो कपड़े बनाए हैं, जो बुने हैं उन्होंने। So when she says, I made your clothes, you will know that muffler or that scarf or the pair of socks that she has knitted. There is a face behind every garment that you buy from Kilmora. If you have visited our shops, we have a lot of really loyal customers. The one thing they love is the stickers that go on to all our knitted products that give the knitter's name. The knitter uh, writes her name herself on that sticker, and which is then stuck onto the product which is knitted by her. And if you look at our agri products, our food products, they are all artisanal, they are all small batch. We make it with uh, mindfulness and intention. This is all handmade. I will soon show you a short video on how we do this. But just to give you a small example, in the hills we have an abundant plum harvest. Let me just play this first. You're on mute. Sorry. So that was the Malta marmalade process that was being done. Now everything there, right from cutting the peels to taking the juice out, is all done by hand. When I mentioned artisanal, when I mentioned small batch intentional products, I wanted to share an example of what we are doing this year very consciously. We have an abundant plum harvest, but it does not mean that we buy unlimited quantities which are then pulped and we add whatever chemicals to preserve it after. We buy enough of the seasonal produce to make it in that season, and it is bottled, which is why a lot of our customers, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, आप लोगों को काफी जैम्स चटनीज किल्मोड़ा की इसी वजह से नहीं मिली थी, क्योंकि हम पिछले साल लॉकडाउन में कुछ कर नहीं पाए थे। इस साल उम्मीद है हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे।
और इसी के साथ मैं बहादुर दा को हैंड ओवर करती हूँ। अब यहाँ से आगे की कहानी बहादुर दा के साथ। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू मोहित जी। मैं जो है केजू में जुड़ने से पहले चिराग के साथ मैंने 5-6 साल कार्य किया। इसमें जो है हम लोगों ने संस्था में एनर्जी का कार्य हम लोग करते थे, जहां पर हम लोगों ने बायोगैस निर्माण, निर्धुम चूल्हा निर्माण और इसके अलावा हमने जो है इनके साथ साथ प्रेशर कुकर, सोलर लालटेन, इस तरह का जो है हमने वहां पर काम करा। उसके बाद जो हमें 2001 से केजू में जुड़ा, केजू में शुरुआत हुई थी कि हमारा जो चुआरू या खुमानी जो के बीज हैं, तो कन्हैया लाल जी जो चिराग के संस्थापक थे, उन्होंने देखा कि गांव में जो है इतना एप्रिकॉट सीड बर्बाद हो रहा है, जो खुमानी खराब हो जाती है, उसका कोई यूज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो हम एप्रिकॉट सीड से जो है तेल निकालने का काम क्यों न शुरू करें, तो जिससे जो है हमारे आसपास के गांव में जो है थोड़ा बहुत इनकम उससे उनकी हो सकती है। तो उस समय हमारे पास जो है तेल निकालने की जो घानी आप देख रहे हैं, ये हमारे पास थी नहीं। तो इसको खरीदने के लिए हम लोग जो है कानपुर गए। कानपुर से जो है ये मशीन हम खरीद के लेके आए। जब हम ये मशीन खरीद के लाए तो शुरू में तेल निकालने में थोड़ा मुश्किल हमें हुई, क्योंकि वहां पर जो है इसका तेल नहीं निकालते थे, कोई और काम में यूज करते थे इसको। ये सारी जो है पूरी लकड़ी की बनी हुई है, अंदर का जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का है। इसमें कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है। तो जब हमने शुरू में इसको लेके आए तो यहाँ पर जो है हमने जो बीज पहले से इकट्ठा करा था, तो हमने उसको 2-3 दिन में भी चला दिया, रात में भी चलाया, लेकिन ऑयल शुरुआत में निकल नहीं पाया। क्योंकि एक तो ये कारण ये था कि जो पूरा लकड़ी का था वो लकड़ी जो है वो सारे उसको ऑयल को पी गई। और उसके बाद जो बीज हमारा था वो उतना साफ और ताजा था नहीं, वो भी खराब बीज था। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उसमें दिक्कत हुई थी शुरुआत में। तो अगले साल हमने ये सोचा कि अब अगले साल हम, क्योंकि फ्रूट का सीजन पहाड़ में जो है एक ही बार इधर होता है, तो जब ये सीजन होता है तो उसी टाइम में हम लोग एक बारी में इकट्ठा गुठलियां जो है इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमने शुरुआत में सोचा था कि हम लोग जो है इस साल एप्रिकॉट सीड को तो तोड़ के उसका अंदर का बादाम गिरी जो होती है उसको निकाल के खरीदेंगे। तो हमने लोगों को जो है थैले भी बांटे गांव में। तो हमने कहा जो है आप लोग इकट्ठा जो तोड़ के इसमें गिरी लेके हमारे पास आ जाए। तो वो लोग जो है गिरी निकाल के लेके आ गए। तो इतना बहुत सारा गिरी इकट्ठा हो गया था शुरू वाले साल में। तो उतना हम लोग जो है निकाल नहीं पाए। तो निकाल नहीं पाने के कारण जो है हमारा जो गिरी था एकदम कच्चा गांव से आया, तो जो है उसमें फंगस भी लगी। तो बहुत सारा गिरी जो है उस टाइम में हमारा खराब हो चुका था। तो शुरू वाले साल में हमारा जो है खाली 30 लीटर ही हम तेल निकाल पाए इसके लिए। तो फिर हमें देखा कि ये तो ठीक नहीं चल रहा हमारा, कैसे फिर उसको करेंगे। फिर उसके अगले साल हमने तैयारी करी कि हम लोग जो है अब जो एप्रिकॉट सीड होगा उसको जो है पूरे सेल सहित ही लेंगे, वो तोड़ेंगे बाद में। फिर हमने वो सेल सहित ही उनको सुखाना शुरू करा। सुखा के जो है उसको बोर में अच्छी तरह, जिसमें हवादार बोरे हैं उसमें इकट्ठा करके उसको रख देते थे। बाद में जो है हम लोग तब जो है इसकी कहानी की ऐसी जो है शुरुआत हुई। और उसके बाद जो ये मैंने जो है उसके बाद 3 साल तक ये मशीन चलाई। और फिर उसके बाद हमारे साथ जो है राजेंद्र जुड़ गए थे। तो अब राजेंद्र उस काम को जो संभालते हैं। इसमें जो है हम अब जो है इसके लिए हम करते हैं कि पूरा इकट्ठा जो है गांव वालों से, जब सीजन होता है तो उस टाइम हम गुठली जो है इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा गुठलियां करने के बाद हम सुखा के उसको अपने स्टोर में रख देते हैं। उसके बाद जो है गांव वालों को फिर दोबारा से जो है उसको तोड़ने के लिए देते हैं। तो इससे जो है उनकी इनकम, एक बार तो हम उनसे खरीद लेते हैं, उस समय पैसा देते हैं। उसके बाद जब हम उनको तोड़ने के लिए देते हैं तो फिर उनको दोबारा से एक इनकम उनकी जो है और इससे हो जाती है। इसके साथ साथ जो उसका खली ऊपर से बच जाता है तेल निकलने के बाद, तो उसको भी हम लोग जो है फिर ये गांव वालों को फिर से दोबारा देते हैं। ये लोग जो है उससे हमें स्क्रब बना के उसके कूट के सुखा के जो है हमको वापस देते हैं। तो उसका भी हम उसका पेमेंट इसलिए इससे करते हैं। तो इससे जो है ऐसे हमारा जो है घानी का काम शुरुआत में चला। तो मैं थोड़ा सा इनको बता देती हूँ। जी Basically, Bahadur Da here was talking about his experience and his beginning with Kilmora. He began with a cold process apricot oil unit, and when we had begun this, we really had no idea as to how to go about it. So Bahadur Da actually had to go to Kanpur to buy the
the press and get it here. Now, you see the outside of the press is made with metal, but the inside is completely wooden. It's a cold pressed oil extraction. So when the first time around we put the kernels in, there was no oil that was coming out. The reason being that wood had to first initially absorb most of the oil before we could extract any more. There were more mishaps, more learnings on the way, but ultimately we do now have a flourishing cold process apricot oil unit. We also have some cold pressed flaxseed oil now. The apricot oil gives double income to the villagers because the first time we buy the seeds from them, after which Bahadurda then gives the seeds in lots to the villagers for them to break it and give the kernels back. So the kernels are what, if you see on the extreme left, top left corner, the kernels are from what we extract the oil from, and the shell is used to make our apricot scrub. हाँ बहादुर अब आप जी स्लाइड से जी। उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें जो है किल्मोड़ा की टाइमलाइन। तो हमारा काम पहले जो है बहुत छोटे स्तर पर था। हमारे साथ जो है फिर नलिनी मिश्रा जी जुड़ी, जो हमारी जनरल मैनेजर हुई उस टाइम के लिए। तो उन्होंने जो है हमें वीविंग का काम जो है, वीविंग का डिजाइन वगैरह सिखाई, और उससे अलावा निटिंग का काम उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद हमको जो है दस्तकार के एग्जीबिशन में जो है हिस्सा लेना हमने शुरू करा। और जो पहला हमारा एग्जीबिशन था उसमें नलिनी जी हमारा मार्गदर्शन खुद करा, वो खुद एग्जीबिशन में भी गई, और हमारे साथ उनके साथ हमारे जो है जो वीवर जो बनाते थे सामान वो गए, और हमारे जो है वीविंग सुपरवाइजर है जीना जी, वो भी साथ में गए। तो पहली एग्जीबिशन जो है हमने इस तरह से शुरू करी, दस्तकार की एग्जीबिशन थी। तो उस दौरान जो है वो सालाना जो है 15 से 30 नवंबर तक जो है चलती थी, 15 दिन के लिए होती थी वो दस्तकार की एग्जीबिशन दिल्ली हाट में। इस तरह से हमने जो है आगे को फिर इसका शुरू करा। इसके साथ साथ हम लोग जो है दस्तकारी हाट समिति दिल्ली हाट में भी दोबारा जाने लगे, साल में 2 बार एग्जीबिशन करते थे। जी स्लाइड चेंज। वर्तमान में जो है मेरा जो काम है ये उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग करना, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वीविंग, निटिंग या एग्री का, उसकी साल भर की प्लानिंग की, साल भर में कितना हमारा शॉपों में सामान जाएगा, कितना हम एग्जीबिशन के लिए करेंगे, इस तरह का प्रोडक्शन प्लानिंग का काम है। उसके अलावा जो है जैसे निटिंग में जो भी हमारी महिलाएं बनाती हैं, पूरे महीने भर वो इकट्ठा करके सामान हमको देती हैं, तो उसका पेमेंट वगैरह हम उनको उनके खाते में करते हैं, उनके सबके खाते खुले, ये भी काम है। उसके अलावा जो है जो सामान हमारा सप्लायर से हमको सामान आता है या जो हम सामान उनको भेजते हैं, उसका जो है मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ कि सामान अभी कहाँ पहुंचा है, कहाँ आया है। इसके अलावा जो है सामान आने के बाद उसकी जो है इन्वेंट्री होती है, वो इन्वेंट्री का काम भी होता है। जैसे बल्क बायर है, जो बड़े बायर है, उनको भी सामान जाना है, तो उनकी पैकिंग करवानी है, उसको ट्रांसपोर्टर से बात करके जो उनको भिजवाना है। और एग्जीबिशन में जो भी सामान एग्जीबिशन में जाता है, तो उसकी भी जो है हम लोग पहले से तैयारी करते हैं कि उसमें कितना, हम कौन सी एग्जीबिशन है, किस तरह की एग्जीबिशन है, कितने दिन की है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सामान ले जाना है। तो उसके लिए फिर हम लोग उसमें जो है बारकोड लगाते हैं कि हम प्राइस टैग लगाते हैं। प्राइस टैग लगाने के बाद उसको हर एक सामान को से अलग अलग पैकिंग में पैक करते हैं, क्योंकि वहां जाके जो है आसानी से हमको सामान खुल जाए एग्जीबिशन में, क्योंकि एक तो जगह बहुत कम होती है, बाद में जो सामान बहुत ज्यादा होता है तो खुलने में दिक्कत होती है। तो अलग अलग पैक बना के ऐसे फिर हम एक कार्टन में बना के जो है इसको ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम लोग जो है भेजते हैं, और उसकी ट्रांसपोर्ट से वापस भेज के उसकी काउंटिंग करके उसके भी इन्वेंट्री का काम बाद में हम लोगों ने जो यहाँ पर किल्मोड़ा शॉप है, इनमें जो है क्या क्या सामान चाहिए वो सामान उनको भिजवाना है, उनको बारकोड लगा के देना है। उससे अलावा जो है एप्रिकॉट सीड जो मैंने अभी बात करी, उसका जो है इकट्ठा करवाना गांव से, उसकी पेमेंट प्रोसेस करना, स्क्रब जो बनता है उसका स्क्रब बनवाना। और इसके अलावा जो है स्थानीय जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं, जो हमारे सरकारी दफ्तर है उसमें जो है अगर हमारे पानी नहीं है ऑफिसों में, या बिजली की व्यवस्था करनी है, इस तरह का कार्य भी जो है
ये मेरे द्वारा जो है किया जाता है वर्तमान में। जी जी अनामिका जी। हाँ जी, मैं बहादुर दा अभी ये वीडियो प्ले करती हूँ जिसमें आपकी हंसी के अलावा आप जी थोड़ा सा और बोलते भी हैं। मेरा नाम बहादुर सिंह मेहरा है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूँ इधर कुमाऊं ग्रामीण उद्योग में। जो है नॉर्मल दिन हमारा ऐसी है, जैसे हमारे शॉपों का सामान अगर जाना है तो शॉपों की सामान की पैकिंग करना है, उससे अलावा और भी बाहर जो सामान जाता है उसका करना है, इन्वेंट्री करना है, स्टॉक में जो भी सामान आ रहा है उसको चढ़ाना है, इशू करना है। केजी का गोल भी यही है कि यहाँ के लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिले, इनका रोजगार के साधन बढ़े। तो मेरा भी यही है कि इस एरिया में जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम लोग पहुंचा सकें, उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति में मदद कर सकें। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, जो यहाँ पर लोग बाहर जाते हैं उनको यहीं पर काम मिले और यहीं काम करके जो है कुछ कमा के यहीं पर लोग जुड़े रहे हैं। कि अच्छा तो हमें वीविंग का सबसे अच्छा लगता है। वीविंग का काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, वीविंग का अच्छा लगता है। हमने इसलिए शिकायत, जैसे अभी हमारे पास राजेंद्र सिंह जीना थे, यहाँ से जो है दूसरी जगह वो काम करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा वीविंग का था नहीं। वो भी स्कूल में कहीं सीख के जो है बाहर काम करते थे, तो यहीं के थे, तो यहाँ के लोगों को उन्होंने सिखाया। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ के हैं तो वीविंग का हम लोग यहाँ शुरू करें फिर, क्योंकि पहले से यहाँ काम था नहीं उस तरह का। जो है यहाँ पर सिखा के लोगों को उस तरह का काम दिया हुआ है, तो वो भी अच्छे से करते हैं। ना ऐसा तो किसी ने नहीं पूछा, और भी लोग और सीखना चाहते हैं। अब दूसरी जगह भी उन्होंने कहा इस एरिया में यहाँ पर अब तुम्हारा है, किसी दूसरे एरिया में जाके और सिखा दो। ऐसा तो नहीं कहा कि क्यों सिखाए, लेकिन सीखना और लोग भी चाहते हैं। जी और जो है हमारे पास जो ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं या छोटे ऑफलाइन ऑर्डर भी जो भी आते हैं, तो इसके लिए हम लोग जो है स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे स्पीड पोस्ट ऑफिस तो है, छोटे पोस्ट ऑफिस है, लेकिन वहां से जो है स्पीड पोस्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमको जो है 8-10 किलोमीटर ऊपर मुक्तेश्वर हमारा एक मेन पोस्ट ऑफिस है, वहां से हम लोग करते हैं। और उसमें जो है हमारा आज तक हम 15 साल से जो है ये इंडिया पोस्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो आज तक हमारा कोई इस तरह का कोई सामान रुका नहीं या कोई मिस नहीं हुआ। एक आध बार हुआ था कि एक सामान हमारा थोड़ा सा मिस हो गया था, बाकी ऐसे 15 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ। तो एक बार हम लोग जो है एक ऑर्डर था हमारा एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट ऑर्डर में जो है हम लोग इसको भेज रहे थे, टर्कर यूएसए जाना था वो। तो इंडिया पोस्ट वाले ने अपना जो बुक कर रहा था, तो उसने टर्कर की जगह उसको टर्की कर दिया। तो हमने भी उसका जो स्लिप थी उसमें देखा नहीं। तो बाद में जो है हम लोगों को जब सृष्टि जी हमारी है, उन्होंने जो है थोड़ा इसको ट्रैक करा कि कुछ दिनों बाद कि वो कहाँ पहुंचा है, अभी पहुंचा नहीं पहुंचा। तो उन्होंने देखा कि वो तो दूसरी जगह के लिए, टर्की के लिए जा रहा है। तो उसके बाद जो है उसने वहां हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस से बात करी। पोस्ट ऑफिस वालों ने कहा कि आपका कहीं कोई गुम होगा नहीं, जो भी सामान होगा तो आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वो दूसरे देश में चला गया है तो दूसरे देश से भी वापस आके वो यहाँ वापस नहीं आएगा, तो उससे उधर अमेरिका चले जाएगा वो। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। तो टाइम लगने के बाद जो है वो, लेकिन सुरक्षित जो है फिर आगे जो है पहुंच गया। तो ऐसी जो है हमारे पास कई बार फोन आते हैं, शाम को भी आते हैं, या जो हम ऑनलाइन ऑर्डर भेजते हैं उनको फोन आते हैं कि अभी तक जो है सामान नहीं मिला। तो हम उनको यही बताते हैं कि जो है सामान पहुंच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है आप उनको भरोसा दिलाना पड़ता है कि हमारे ऑर्डर जो है लॉकडाउन में भी टाइम से पहुंचते हैं। अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है उसमें जो है, क्योंकि इंडिया पोस्ट का वो है, जैसे हम यहाँ से भेजते भी हैं तो एक आध दिन वैसे भी लेट हो जाता है कि एक बस हमारी एक आती है इधर, तो वो भी एक दिन में एक बार लेके जाती है सुबह। अगर वो एक दिन नहीं आई तो एक दिन सामान समझो कि फिर यहीं अटक गया है। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पर जो है कोरियर सर्विस है नहीं। कोरियर सर्विस के लिए भी हमको जो है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हल्द्वानी भेजना पड़ता है। उसके लिए भी काफी दिक्कतें हैं, सामान वहां से भेज नहीं पाते हैं। अगर कोई गाड़ी वाले के हाथ भेजा फिर वैसे ही जो है उसको वापस ले आता है कभी कभी, तो क्योंकि वो कहता है कि हमें तो स्पीड पोस्ट या कोरियर वाला मिला नहीं,
तो या कोरियर वाला कहता है वो गाड़ी हमें नहीं दिखी, तो इस तरह की दिक्कत जो है उसमें आ जाती है। बाकी जो है इंडिया पोस्ट से ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। बहादुर दा, आप जरा बताना चाहेंगे जो लोकल के ऑर्डर्स होते हैं बस वालों के साथ भेजते हैं, फॉर इंस्टेंस ये हाँ, नैनीताल बस वालों के टू साथ अल्मोड़ा भेजते हैं, तो उधर कितनी जान पहचान कितनी जरूरी होती है उनके साथ मेंटेन करना? जी, तो जैसे हम यहाँ भेजते हैं तो वहाँ जान पहचान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम भेजते हैं यहाँ से तो वहाँ एक तो उनको अपनी गाड़ी भरने की होती है और सामान के लिए वो जाते हैं, तो हमारे सामान के लिए कहाँ लगे रहेंगे इस तरह के। जी। Bahadur da is being very humble about this. Let me just do what Bahadur da said. Firstly, we are very proud to say that we've been sending all our parcels out via speed post, the smaller parcels out via speed post for the last 15 years. In these 15 years, there has just been one misplaced parcel which had some papers. Nothing else has been misplaced in all these 15 years. What does happen is it does take a little longer. We have just one bus that comes in here daily, by which all the parcels then go down to Haldwani to go further. Haldwani is the main train head, the main station, the main pickup point, and the main big town for us here in Kumaon part of Uttarakhand. So all the parcels then go via bus down to Haldwani. If that bus for whatever reason does not come on that day because of bad weather, because the bus genuinely broke down, the parcels then get delayed by a further 24 hours. As you can see on the screen, our post offices here are very picturesque. We have one attendee who has joined in just to see these photographs because I promised him those photographs. Hi, Karthik. So the nice stone facade post office that's almost walking distance from our main office does not accept speed post parcels. We have to send ours about 8 kilometers away to the Mukteshwar post office, where we can then book all these. The local, we also have some buyers locally in Kumaon, and Bahadur Da has excellent relationships with the bus drivers. He knows their names. Because our buses are overloaded here, a lot of large, bulky items get transported. So Bahadur Da actually has that kind of relationship with these people to ensure that our parcels also find space and reach without any damage whatsoever. Hanji Bahadur Da. जी, तो अब जो है छोटे हमने बात करी अभी, जो है जो छोटे हमारे बायर थे उनको भेजने के लिए। अब जो हम बल्क में हम सामान भेजते हैं, तो उसके लिए शुरुआत जब हमने बल्क में भेजने की शुरू करी थी, या फेब इंडिया में भेजते थे या एग्जीबिशन में भेजते थे, तो शुरुआत में हमको ये अंदाजा या पता नहीं था कि हम कैसे सामान जो है ये भेजेंगे। तो हम शुरुआत में जो है हम अपनी चिराग संस्था की गाड़ी में जो है सामान लेके यहाँ हमारा उसका सामान था फेब इंडिया का, तो उसको सामान लेने के लिए हम लोग अपनी गाड़ी में चले गए लेके। तो पूरी गाड़ी भरी हुई थी, पीछे जो है तो एक ड्राइवर थे, एक मैं था, 2 ही लोग थे उसमें बाकी। तो हम लोग यहाँ से निकले, तो निकल के यहाँ से सुबह निकले, तो हमने कहा शाम को दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में जो है हमें दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है रोक लिया गया, कि वो पुलिस वाले ने रोक लिया कि बता रहे हैं कि इतना सामान आप भर के जो है कहाँ ले जा रहे हैं, या तो आपको इसका फाइन भरना पड़ेगा, आपका चालान हो जाएगा, नहीं तो आप इसका या तो पैसा भरो या अपने सामान को यहाँ से निकाल के दूसरे उसमें ले जाओ। तो हम उन दिनों जो है फोन की भी दिक्कत थी, फोन भी नहीं थे, मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे, किसी से बात भी नहीं हो सकती थी, या उनने कहा आप किसी से बात कराओ। फिर जो है मैंने कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम कहाँ से पैसा देंगे आपको, हम इस फेब इंडिया का सामान हम लेके जा रहे हैं, वहां हमने देना है, इसमें शॉल वगैरह है। तो उन्होंने कहा फिर या तो किसी से बात कराओ या पैसा दो। फिर वो अपनी गाड़ी में मेरे को लेके बैठा के ले गए कि आप चलो उधर पीसीओ है आधा किलोमीटर दूर, तो उस पीसीओ से आप या तो ऑफिस में फोन करो
तो मैंने फिर वहां से मेरे को उठा के ले गए पीसीओ से मैंने बात करी, जो है हमारे विपिनदा है केजू के निर्देशक, तो उनसे मैंने वहां से उनकी बात करवाई। तो पुलिस वाले ने उनसे बात करी, तो विपिनदा ने भी उनको काफी समझाया जो है कि ये सामान ऐसे नहीं ले जा रहे हैं, हम ऐसे ले जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है या तो आप इसका पैसा दो, नहीं मान रहे थे वो लोग जो है। फिर उनने जो है उनसे कहा कि या तो आप मुझे इसका एक सॉल ही देने के लिए कह दो। फिर विपिनदा ने उनसे कहा कि हम इसका जो है ना आपको सॉल भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर उनने जो है हमको छोड़ा वहां से जो है, फिर हम इस तरह के लेके गए वहां से सामान जो है। और दूसरी फेब इंडिया का ऑर्डर हम पहले हम जब जाते थे तो हमको 3 दिन लग जाते थे वहां। एक दिन हम यहाँ से लेके गए सामान, तो दूसरे दिन उनको जो है वहां पर पूरे दिन में उनको काउंट कराना होता था। काउंट कराने के बाद जो है तीसरे दिन फिर हमारी वापसी जो है इधर होती थी। तो 3 दिन का सामान उस टाइम में हमें लग जाता था जो है। तो वर्तमान में हम लोग जो है जैसे बड़े ऑर्डर आ गए तो हम उसको टीसीआई से भेज देते हैं, गति से भेज देते हैं, निटको से भेजते हैं। अब तो हमारे उनसे थोड़ा रिलेशन ठीक हो गया, हम यहाँ से हम गाड़ी वाले से भेजते हैं, तो उधर से वो खुद ही बुक करके जो है आगे को वहां से भेज देते हैं। तो हमें इतना अब दिक्कत नहीं होती, ना उनके साथ जाना भी नहीं पड़ता है। तो हमारा सामान जो है उनके साथ जो है सुरक्षित अब पहुंच जाता है। जी। बहादुर दा, कोई भी आपकी तो बहुत ट्रांसपोर्ट की तो बहुत कहानियां हैं, मेरे को पता है। पर जो भी मतलब जैसे वो महाराष्ट्र में जो मुंबई गया था जो, वो एग्जीबिशन के साथ आएगा, अच्छा एग्जीबिशन के साथ आएगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिर जो है जैसे हम एग्जीबिशन की पैकिंग की बात करते हैं, तो एग्जीबिशन में जैसे हमारे पास एग्जीबिशन की डेट्स आती हैं कि इसी डेट को इस ये वाले एग्जीबिशन है, तब हम देखते हैं कि वो कितने दिन की एग्जीबिशन है। उस हिसाब से जब हम जो है सामान निकालते हैं, उसकी जो है प्राइसिंग टैगिंग करते हैं सारा जो है। प्राइसिंग टैगिंग करने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से जो है प्रोडक्ट वाइज पैकिंग करते हैं। प्रोडक्ट वाइज पैकिंग करने के बाद उसकी जो है उसी तरह से कार्टन हम लोग बनाते हैं। कार्टन बनाने के बाद हम उसको जो है भेजते हैं। तो गत्ते के डिब्बे में डालकर जो है हम ट्रांसपोर्टर को देते हैं। ट्रांसपोर्ट वाला जो है उसको उसी हिसाब से हम बात करके रखते हैं कि हमें इस इतने तारीख को जो है ये वहां पर जो है अर्जेंट चाहिए। तो तब जो है वो उस हिसाब से हमको वहां पर माल उपलब्ध कराता है। तो अनामिका जी थोड़ा सा जो है जो पिरूल की पैकिंग है उसके बारे में थोड़ा बताएंगी। थैंक यू बहादुर दा। So, as you all can see on the right hand side, it's mentioned zero plastic packaging in progress for our glass jars. ये पैकिंग चल रही थी, हम एक एग्जीबिशन के लिए पैक कर रहे थे। हमने बहुत कॉन्शियसली डिसाइड किया था जब लास्ट ईयर लॉकडाउन के वक्त हमारा काफ़ी काम ऑनलाइन हो गया था, काफ़ी सेल्स ऑनलाइन हो गई थी। हमने बहुत कॉन्शियसली ये स्टेप लिया था कि हम बबल रैप नहीं यूज करेंगे फॉर आवर ग्लास जार्स। I know I gave a lot of palpitations to the team, to my boss who's here listening in, but we did a lot of R&D. What we have used and what you can see in the photograph is they are pine needles. So pine grows a lot here in the Himalayas. It's also a fire hazard in some ways. If we collect the dry pine needles, it helps in three odd ways. One is that it is a source of livelihood for the women here because we buy the dry pine needles directly from women in the area. The second is it's a completely environment friendly packaging for all glass jars. We have been sending out our glass jars in bulk and individual packing for the last more than 1.5 years now. There have just been 3 jars that have arrived broken. Thirdly, of course, the fact that it is a local source, local material that is readily available. There is a when we speak of carbon footprint of sourcing materials especially, there is almost a zero carbon footprint for this. And all the boxes that reach, I can see a lot of our online customers who are here also listening in. You might see a box with
Vim written on it, or you might see something with an Amul milk powder written on it. The reason being that we repurpose all cardboard cartons from neighborhood shops and use them to do all our packing. हाँ जी बहादुर दा। जी चेंज करिए स्लाइड। अब जो है हम लोग जो है एग्जीबिशन करते हैं विंटर में, तो बड़े बड़े शहरों में जो है जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, लखनऊ इत्यादि में हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं विंटर का सामान लेके। तो जब हम एग्जीबिशन में जो है हमारे 10 या कोई 10 दिन की या कोई 15 दिन की एग्जीबिशन होती है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है सामान इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद ट्रांसपोर्ट से जो है हम उसको भेज देते हैं। तो एक बार जो हम ट्रांसपोर्ट से भेज रहे थे, तो वो एग्जीबिशन जो थी वो दीपावली के बाद होनी थी जो है। तो दीपावली के टाइम में होता है कि ट्रांसपोर्टर जो है थोड़ा उनके ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, वो छुट्टी में चले जाते हैं, तो वो जो है घर चले गए। तो हमने ट्रांसपोर्टर से एक बात करी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है तब तक आ जाएंगे, आप 2 दिन जब एग्जीबिशन है उससे 2 दिन पहले हमको सामान भेज दीजिएगा। तो हम लोगों ने जो है सामान पहुंचा दिया 2 दिन पहले हल्द्वानी में। उसके बाद जिस दिन से निकल गई ट्रेन में बैठ के सब दिल्ली पहुंचने वाले थे, तो शाम को दूसरे दिन से एग्जीबिशन शुरू थी। तो शाम को जो है ट्रांसपोर्टर का फोन आ गया कि आपका सामान आज नहीं जा पाएगा। हमने कहा क्या बात होगी? अब वो कह रहा है जो है आपका कोई सामान ऐसा सड़ने गलने वाला तो है नहीं, सब्जी भी नहीं है, हम जो है इसको जो है दूसरे दिन भी भेज सकते हैं। तो हमने कहा साहब हमारा सामान है वो तो जो है कल एग्जीबिशन है, तो वहां तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमारा सामान तो ऐसे ही रुक जाएगा, हमारी सेल भी नहीं होगी, दूसरे दिन से एग्जीबिशन शुरू थी। तो बड़ी मुश्किल से जो है उसके बाद फिर उनसे बड़ी बातचीत हुई, रात को ही जो है बड़े मुश्किल से जो है वो लोग फिर माने, रात में जो है उनने जो 1 बजे रात को जो है फिर गाड़ी यहाँ से रवाना की, तो दूसरे दिन हमें को जो है सुबह 10 बजे वो सामान दे पाए। तो ऐसी एग्जीबिशन में ऐसी जो है दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। एक दूसरा ये हुआ था कि हम लोग एक चेन्नई एग्जीबिशन में गए थे, वहां भी इस तरह की दिक्कत हुई। हम लोगों ने सामान यहाँ से भेज दिया था, लेकिन सामान भी वहां ट्रांसपोर्ट के वहां पहुंच गया। अब हमें जो है वहां पर हम जैसे ही पहुंचे तो हम ट्रांसपोर्ट से बात करने लगे, तो उसको जो है हिंदी नहीं आती थी। अब वो तमिल में बात हमसे करे जो है, तो फिर हमने कहा अब कैसे बात हुई, तो हमारे जो टैक्सी वाले ड्राइवर थे हमने उनसे उनकी बात कराई, तब उनने तमिल से उनसे बात करके फिर हमको हिंदी में समझाया कि वो लोग जो है ऐसा कह रहे हैं कि सामान आपका इधर पड़ा है और ये जो आप जहाँ आपको भेजना है वहां का एड्रेस आप बताइए। तो फिर उनने बड़ी मुश्किल से सामान हमको मिला। इस तरह की दिक्कतें एग्जीबिशन में आ जाती हैं। जी अब जो है कोविड का जो टाइम अभी चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हम लोगों ने जो है एक ऑनलाइन अपनी शॉप शुरू करी। ऑनलाइन शॉप में तो जैसे हम अब ये लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ गई कि हम जो प्रोडक्शन प्लानिंग हम लोग करते हैं गांव, उसके लिए कि हम कितना सामान जो है एग्जीबिशन के लिए बनाए, कितना सामान हम अपने जो है शॉपों के लिए बनाए। अब लॉकडाउन में ये है कि कब लॉकडाउन खुलेगा या कब नहीं खुलेगा, एग्जीबिशन होगी या नहीं होगी, तो इसमें थोड़ा सा जो है हमें दिक्कत आ रही थी इसको सामान तैयार करने में। अगर हम सामान तैयार करें, अगर वो नहीं बिका तो रह जाएगा हमारे पास, तो इससे हमने जो है फिर ऑनलाइन सेल शुरू करी। तो ऑनलाइन सेल शुरू करने में हमने जो है उसमें हम फोटो डालते हैं, जैसे हमने शॉल की फोटो डाल दी, तो वहां से हम एक शॉल की फोटो डाली, तो फिर उसमें लोग कहते हैं कि इसकी जो है और तरह की भी हमको दिखाओ, क्योंकि ऑनलाइन में उतना ज्यादा डाल नहीं सकते हैं। तो एक बार उसमें जो है हमें किसी ने जो है 100 फोटो मांग ली, तो 100 फोटो उन्होंने कहा वहां, फिर हमने जो अलग अलग कलर की अलग अलग डिजाइन की उनको 100 फोटो शॉल की भेजी, उसमें से जो है उन्होंने 70 शॉल हमसे खरीद लिया। तो ऐसी जो है ऑनलाइन में दिक्कतें भी आती हैं, कभी कभी लोग जो है फिर फोन कर देते हैं कि जो है आप हमारा सामान अभी पहुंचा नहीं,
या वहां नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, तो कभी रात को भी फोन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ तो पहाड़ में जो है हम लोग को जल्दी सुबह जो है उठ जाते हैं, और उसके बाद जो है रात को हम जब वो फोन करते हैं 9 साढ़े 9 बजे, तब तक हम जो है सो जाते हैं। तो इस तरह की भी दिक्कतें ऑनलाइन में हमें आती हैं। अनामिका जी। हाँ जी, बहादुर दा, आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी। आप अगर जो महाराष्ट्र में मुंबई में पार्सल गया था ना ऑनलाइन का, और लॉकडाउन में गोडाउन में अटक गया था, तो फिर यहाँ हल्द्वानी में दिनेश की जान पहचान निकाली ना आपने, वो मुंबई के उसमें। जी जी। हाँ, उसका भी ऐसे तो थोड़ा कई बार बताइए। एग्जीबिशन ऐसे तो कई बार होता है। जैसे हम एग्जीबिशन से पिछली बार हम लोग गए नहीं थे, तो लॉकडाउन था, तो हमने विंटर मेले में जो है हमने यहाँ से सामान भेजा हमने। उनने जो है वहां से जब उनका खुद ही उनने अपने वर्कर वहां रखे थे दस्तकार ने, तो उनने सेल उनने खुद करी। तो उसके बाद जो है वो सामान अपना वापस जब भेज रहे थे, तो हमको जो है वहां से सामान उनने जो है 3 नग बना के भेजे। तो वापस ही जब वो आया यहाँ, तो हमें उनने कहा यहाँ तो 2 ही आए हैं, तो 1 नग आपका गायब हो गया बीच में ही जो है। फिर उसको कई टाइम जो है 15-20 दिन उसको ढूंढने में लग गए। तो फिर वो हमारे निटको से जो थे, उन्होंने फिर चेक करा के बड़ी मुश्किल से 15 दिन बाद जो है वो वापस आया। इस तरह के तो काफी हैं जो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। So basically what Bahadur Da here लेकिन is फिर आ गया था वो वापस। saying, हाँ, but what Bahadur Da is talking about is also like when we mention joys of working in the Himalayas, these are real life challenges, real time challenges that we need to face, and where a community connect also makes a difference. We had sent a large order out to Bombay, and it got stuck in a godown. It could be traced to a godown which was locked, and they were refusing to open it, and our buyer needed that order. Bahadur Da figured out a person who was a distant cousin of the transporter in Haldwani. We got the transporter in Haldwani to establish contact with that boy there, and that's how the order was delivered to our buyer in Mumbai out of a locked godown. So yes, so while we do have challenges, we also have community connects like this which enable us to overcome the challenges. बहादुर दा, आप स्कूल और अस्पताल के बारे में बताना चाहेंगे? I think Bahadur ji seems to have got disconnected. So Okay. yeah. Yeah. So I'll I just could talk see about. him here, but yeah. But now he's he's got disconnected. Okay, so that's I mean that's part of the joy of being in the mountains. In our last session, I think 2 out of 3 people here were sitting in absolute darkness as there was no electricity, and we were lucky enough to have got through the webinar without any major connectivity issues. So yeah, basically. We Kumaon Gramin Udyog is a social enterprise, and we do make some profits. Of course, this year, as in the pandemic year, has been very different. But part of the profits that are made are plowed back into a small primary school and a small hospital in the area, both of which are run by a sister organization, Chirag. And Bahadur ji, आप आ गए हैं? No. And the primary school is actually a pretty sought after school in the area. It
it works on the alternate model of education, and the local community send their children there, and the school has had fantastic feedback from the community, and even people who have moved to the area from the cities, their children also go to this school, and so it's I whenever I get the opportunity, I definitely try and visit the school, because it's such a happy environment just to be around these children and see the joy on their faces. So yeah, so part of our profits go to the school, and it's a primary school, and apart from that, part of the profits also go to help run the Chirag school. So you'll see photographs of both on the screen here. Chirag Hospital, sorry. So you see photographs of both on the screen here. The Chirag Hospital is a small hospital that it's an 8-bed hospital, and these days it because of the pandemic, it has been pretty stressful times, but thanks to the hospital, people have had a first port of call. So yeah, so apart from supporting the community through providing them with sustainable livelihoods, this is also a small contribution we make to the area in trying to help bolster education and health. So can we move to the next slide, please? Yeah. So earlier, phones were the only mode of communication. Now there are so many different channels for us to reach out to our customers, and for our customers to reach out to us, which is just as well, since phone connectivity is pretty iffy in the area more often than not. What happens is that you are in a particular spot, there the signal might work very well. You move your spot, and the signal suddenly goes down. So very often mid conversation, we have to sort of move ourselves from where we are if the signal drops. We have accounts on Instagram and Facebook. You can see our handles on the screen for both Instagram and Facebook. We post about new products here, what is new in the area, and also about the community we work with, interesting stories and tidbits about life in the mountains. So if you aren't already following us, we would love for you to follow us. Of course, we are also reachable by email. The address is mentioned on the screen. As mentioned by Bahadurji, we now have an online shop. The address is also given on the screen, www.kilmoda.in. Besides that, we send regular newsletters with updates, email newsletters with updates on our products and stories. We realize that these days there's an overload of information, so we try not to send out too many newsletters so as to clog people's inboxes, but as and when there is something we want to share, we definitely put it out there. And with the pandemic, especially when footfalls in the area have come down substantially, and we are reaching out to our customers and well-wishers, another mode which we have now started using is that of webinars. So we'd like to thank Asian Adventures and Mohitji and his team for giving us this platform. This is our third session in the series, and we have one every fortnight on Saturday evenings. For our next session, we plan to have Anita ji, who is our knitting supervisor. So to answer Sunisha's question, we plan to have Anita ji, who is our knitting supervisor, where she'll be hosting a session on knitting. She'll talk about her journey, KGU's journey with knitting, and she'll also introduce us to the basics of knitting. So that's going to be a really interesting session. So I hope you can all join us. So that's us for today in terms of
the talk and the presentation. Any questions, comments are more than welcome. I'd like to thank obviously Bahadurji for sharing his lovely story with us. He's such an inspirational figure for our team, and he's a pillar of Kumaon Gramin Udyog, and also Anamika for co-hosting the session. Mohitji, would you like to say something? Yes, I'd like to. I think my voice is echoing. I'd like people to know that you'll get the replay link in your inbox tomorrow morning. And those people who had to leave the session halfway through, or people who couldn't attend, will also get the replay link. Of course, they're not here to know this, but friend, if you want to connect with KGU, you know their coordinates are there on the website. So I'd like Anurag to paste to write down the website address, so that if those people sort of want to talk to you more about business opportunities and how they can promote you further and all of that, then they should be able to get in touch with you. Second thing is that this is something that we will be doing with Filmora every 2 weeks. So I'm requesting people to look in your phone books and also in your diaries and also in your networks and circles to invite more people like yourselves to attend these webinars, to attend Filmora's webinar, which is so so empowering, and then not just helping communities but helping you to get some good stuff in your cupboards or in your kitchen cupboards, and to share all those joys that these people are bringing to you. So go ahead and tell people more about Filmora. You might find certain things more expensive, but you know the kind of challenges that they face. So not everything, हर चीज का तोलमोल नहीं कर सकते. We can't rate on the same scale as industrial products. So you must appreciate the fact that some things you'll find more expensive, some things you'll find less expensive, but at the end of it, it's the purity and it's the love and the hard work of the people from the hills that is going to land on your table. So go ahead and talk more about Filmora to your audiences, and 2 weeks later, when they are here again, get your people, your friends, your family, your circle to attend these webinars, so that they also know, they also can appreciate their hard work. So that's my take on this. Anamika? Yeah. Thank you, Mohit. That was very warm, and I'm actually very moved. So yes, and like I was mentioning to Mohit before we started our webinar, it is a very important day for us to be hosting this, because it is World Environment Day, and we all know that we really need to rewind, slow down. The pandemic, with its many costs, has given us that opportunity. Please think about buying from small businesses. I'm not talking just about Filmora, I'm talking about small businesses, social enterprises which are working on ground, making a difference. So on World Environment Day, I would just like to leave you with that small message about when making a difference in your lives, make a difference in the lives of people who are at the grassroots. Thank you so much. Have a great evening. Thank you.